السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ نے بہت مرتبہ دیوبندیوں کی چوری اور جھوٹ پکڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرے چینل پر بھی بہت مرتبہ دیوبندیوں کی چوری کو میں نے بے نقاب کیا۔ آج ایک نیا چور دیوبندیوں کا بہت بڑا چور مولوی کو میں لایا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کی عبارت کو چوری کر کے توڑ مروڑ کر آدھی ادھوری بات پیش کر کے مکاری سے کام لیتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی چوری کو جب میں نے پکڑا اور اس کے جو مکمل عبارت جو ایک لائن پڑھ رہا تھا، میں نے مکمل عبارت پڑھ کر جب اس کو سمجھایا، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں بنا تو آئے بائے شائع کرنے لگا، یہاں تک کہ یہ اتنا بخلا گیا کہ ان کی کتاب جو ان کے بزرگوں نے لکھا ہے تحذیر الناس، اس کی عبارت کو بھی میں نے جب پیش کیا تو اس پر ایک لفظ بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ صرف مکاری اور دغابازی سے کام لیتے ہوئے عوام کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ عوام الناس سے گزارش ہے ان کے مکاری اور دھوکے بازی کو پہچانے، ان کو کسی طرح یہ دیوبندی بھروسہ کے لائق نہیں ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن و حدیث پر جھوٹ بولتے ہوئے دیوبندیوں کو شرم نہیں آتی۔ ان بے غیرتوں سے دور رہے، ان بے شرموں کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دے۔ عوام سے گزارش کرتا ہوں ان مولویوں کو گریبان پکڑ کے پوچھے، تم اس طرح کے جھوٹ کیوں پھیلاتے ہو؟ کسی بزرگ پر تم جھوٹ بول کر ان کے اوپر بہتان کیوں لگاتے ہو؟ آپ دیکھیے دیوبندی کس طرح جھوٹ بولتا ہے، ان کی جھوٹ مکمل آپ پوری اس آڈیو کے اندر سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں، اسی عبارت پر میں نے مکمل گفتگو کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا کس نظریہ سے حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے، وہ مکمل عقیدہ میں نے اس آڈیو کے اندر پیش کیا ہوں۔ آپ مکمل سنیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ سب کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دیوبندیوں کو اللہ تعالی غارت کرے، دیوبندیوں کو اللہ تعالی دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے، آمین۔ ہاں عبدالسلام صاحب، خیریت سے ہیں؟ ہاں عبدالسلام بول رہے ہیں، تم ابھی زندے ہو؟ الحمدللہ زندہ ہوں، سلامت ہوں۔ زندے ہو تو سدھرے بھی نہیں؟ سدھارو، بولو نا، کون سے عقیدے سدھارنا ہے، کون سے اعمال سدھارنا ہے، آپ بتاؤ، ایک ایک موضوع پر بات کمپلیٹ کرو۔ ہاں بتاؤ، ہم نے کون سا کب بگڑا ہوا تھا، اور اس میں کون سی چیزیں آپ کو سدھارنے کی، آپ کی نظر میں ہماری کون سی عقیدہ سدھارنے کی ضرورت ہے، آپ ہمیں سدھارو۔ چلو، آپ کا اگر ایک چیز ہو تو بتایا جائے، اگر ایک چیز ہو تو آپ کو کہا جائے، لیکن آپ پورے ہی آپ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ایک ہی چیز سدھارو، میں چیلنج کرتا ہوں۔ چلو ایک چیز آپ سدھارو، جو عقائد پہ، پہلے عقائد سدھارو، اس کے بعد اعمال سدھاریں گے، ٹھیک ہے؟ عقائد، ایک عقیدے پر بات کرو، جس عقیدے پر آپ کو لگتا ہے کہ پورے ہم اس میں 100% غلط ہے، اسی عقیدے پر بات کرتے ہیں۔ چلو یہ بتاؤ، کیا نام ہے، آپ کے نزدیک اگر حضور کو کوئی حاضر نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ حاضر و ناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ہیں۔ جو حاضر و ناظر نہ مانے وہ پھر نبی کی صفات کو نہیں مانتا، اور جو نبی کی صفات کو نہیں مانتا وہ نبوت کو نہیں ماننے کے مترادف ہے۔ تو وہ کیا ہوگا آپ کے نظر میں؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا یا مشرک ہوگا یا گستاخ نبی ہوگا؟ حاضر و ناظر کس لحاظ سے، آپ پہلے وہ تو بتاؤ کہ ہم کس لحاظ سے مانتے ہیں، آپ کس لحاظ سے آپ گستاخ، آپ پہلے یہ بتاؤ جو حاضر و ناظر مانے۔ اگر حاضر نہ مانے حضور کو تو وہ آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ جو مانے اس پر آپ حکم لگاؤ پہلے۔ نہیں، جو نہ مانے، جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ بریلوی، فرقہ بریلویہ کا اس پر کیا عقیدہ ہے، اور اس کا کیا نظریہ ہے؟ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، بالکل۔ آپ کے فتویٰ سے آپ کے مولوی احمد رضا خان گمراہ ہوئے۔ یہ فتویٰ نظریہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 256 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کرنا، آپ کو حاضر ناظر جاننا۔
और आलिम गैब मानना कैसा है, तो इसका जवाब लिखा है कि या रसूलुल्लाह कहना बेअदबी की जगहों के सिवा हर वक्त जायज़ है, मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानना अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। ये अहमद रजा खां अपनी किताब फतवाए रिजविया में लिखा है। आप देखें और आपके फतवा से आपके अहमद रजा खां साहब गुमराह हुए। अच्छा, आप वो भेज दीजिए मुझे, आप जो बोल रहे हैं वो जरा सबूत मुझे भेज दीजिए। बता दिया, हवाला लिखे, हवाला लिखे, हवाला बोलने से तो नहीं चलेगा ना, हवाला निकालने में आप बोल रहे हैं हवाला, दोनों एक साथ बोलने से बात नहीं बनेगी जनाब। बात आप बोलोगे मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा आप सुनोगे, हम निकालते दोनों एक साथ कैसे है? अभी आपने बोला मैंने फिर भेजते हैं, लेकिन आपने इकरार कर लिया है जो हुजूर को हाजिर ना माने। आपके मौलाना अहमद रजा कहाँ कहते हैं कि वो कहते हैं, वो भेजिए ना, और आप कहते हैं गुमराह है, तो मैंने जब होगा आला हजरत ने कुरान के तर्जुमा में लिखा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है, इस तरह बात जनाब आप बात सुधारने के लिए आए। जब मेरी भी बात सुनोगे, मैं भी आपकी बात सुनूंगा, तब तो सुधार होगी। आप बोलने ही नहीं दे रहा है। जब एक साथ आप बीच में आप बिल्कुल ना बोले, एक लफ्ज भी ना बोले, मैं पूरी बात मैं रखूं। पहले आप फतवा रिजवी आप बात करें, फतवा रिजवी आप तब तो बात करूं मैं। जब भेजिए ना व्हाट्सएप पे, आप भेजिए जो आपके पास। अभी मेरे मोबाइल में सिस्टम है कि अगर मैं अभी व्हाट्सएप खोलूंगा या किताब खोलेंगे तो हमारी आवाज बिल्कुल स्लो हो जाएगी और आपकी आवाज भी बिल्कुल स्लो हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं खोल रहा हूँ किताब। लेकिन जो है सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी आप ये गलत बोल रहे हैं कि आप व्हाट्सएप खोलते ही मोबाइल का आवाज स्लो हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। यही तो आपका अंदर है कि बात से समझते नहीं है। थोड़े हम अहमद रजा खां तो झूठे हैं, बात आप ही झूठे हैं, गलत देखिए गुस्ताखी ना करें। आपके अकाबिरीन की मैंने गुस्ताखी नहीं की, मैंने बात अदब के दायरे में बात होगी। अदब के आप इस्लाह करने के लिए आप बात कर रहे हैं, तो आप अदब के दायरे में बात करें। आप सिर्फ शरई हुक्म लगाए। हवाला करूँ, हवाला आप भेजेंगे, मैं देखकर पढ़कर फिर उस पर मैं हुक्म लगाऊंगा। मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह पर भी हुक्म लगाऊंगा। पहले मैं भेज रहा हूँ, फिर बात होगी, ठीक है? पहले भेजेंगे क्या? एक साथ भेजते रहिए ना, जब भी आप बात नहीं होते रहिए। मैंने बताया ना, मैं अपना उज्र पेश कर दिया ना कि मेरे अंदर ये, मेरे मोबाइल के अंदर ये उज्र है, मैंने उज्र पेश कर दिया, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ना कि आपकी आवाज बिल्कुल स्लो हो जाएगी। मैं सुनेंगे नहीं, आप भी ना सुनेंगे ना मैं सुनूंगा। अच्छा, तो 2 मिनट के अंदर आप पहले भेजिए, फिर वापस मैं कॉल करता हूँ। उसको तलाश करूंगा कि किस सफा में है। सफा हवाला मैं बता दिया है, लेकिन आपका एडिशन बता दिया मेरे पास किताब। आप बताने आपकी बात पर देखिए, मैं भी ऐसा आपके ऊपर कुछ भी कह दूं। देखिए, आपने अपने फतवा से कह दिया, आप मुकरिएगा नहीं। मैं फतवा से मैं कह दिया, वो बात मुकरूंगा नहीं। लेकिन बात यह है कि जब बात करेंगे ना, 2-2 मिनट तय करके, आप 2 मिनट बोले, मैं 2 मिनट बोलूँ। आपके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप भी मेरे बारे में बिल्कुल ना बोले। आप अपने हुक्म जो भी फतवा देते, जो भी भेजते हैं, उसका सबूत आप पहले मुझे भेजें और उसी पर बात होगी। मैं देखकर, मैं पढ़कर, आप भी पढ़ेंगे, मैं देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे और देखकर उस पर हुक्म लगाएंगे। हमको क्या पड़ता है हम की कोई चीज छुपाने की? छुपाना अगर मैं डर के चोट पे मैं खुद को हक पर समझता हूँ कि जो हुजूर को हाजिर ना माने वो गुमराह है, तो इसे और मैंने साबित कर दिया कि फतवा रिजविया में मौलाना अहमद रजा खां लिखते हैं कि जो हुजूर को हाजिर माने वो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। तो आपके मौलाना कहते हैं कि अहले सुन्नत आप जो कहते हैं, हमारे मौलाना जिस लिहाज से कहते हैं, अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह जो कहते हैं, आप कभी खामोश रहते ही नहीं। आप इतना बेसब्र है, खामोश रहते ही नहीं। मैं आपकी पूरी बात सुनता हूँ, आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं, आप बोलने ही लगते हैं। हाँ, बोले लेकिन भेज कर फिर वापस मुझे कॉल करो भेजने के बाद। आप उधर से कुछ भेजे व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं भेज रहा हूँ। मैंने मसला भेज दिया है कि आपने कहा है कि जो हाजिर मानता हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हाजिर मानता हो वो गुमराह है। मैंने आपके आला हज़रत के फतवा से भेज दिया मैंने हवाला, तो आप बताइए आपके फतवा से वो गुमराह हुआ या नहीं? अच्छा, आपकी बात हो गई मुकम्मल। मैं 2 मिनट बोलूंगा, फिर उसके बाद आप 2 मिनट बोलेंगे। मेरे बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, आपके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। मंजूर है?
बोले मंजूर है आपको? बोले बोले बोले। हाँ, बिल्कुल बीच में नहीं बोलना, बार बार नहीं रोकूंगा, बार बार नहीं रोकूंगा मैं। मोदी से भागिएगा मत, मोदी से भागेंगे नहीं, अपने मौजूद पर मैंने हवाला पेश किया है, हवाला रह कर बात कीजिएगा, आप इधर उधर की बात न करेंगे, पहले इस मसले पर हल करें उसके बाद आगे इस बढ़िएगा। मसले को ही हल करेंगे, 2-2 मिनट बात होगी हमारी, क्या उसमें काम है? ने भेजा है, आप बताइए फतवा गलत है नहीं, आप इधर उधर भागेंगे तो मैं बोलूंगा बीच में। इधर उधर नहीं, मैं 2 मिनट बोलूंगा, बीच में नहीं बोल सकते 2 मिनट। आपकी बारी में आप 2 मिनट बोलोगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ, बात ये है, फिर आप बोलने दें मुझे, आप 2 मिनट बाद बोलिएगा। जनाब, आपने जो इबारत भेजा है उसके अंदर ये लिखा है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी हम सलाम पेश करेंगे, अल्लाह के नबी हमारे सामने होंगे, अल्लाह के नबी खुद आकर हमारे सलाम का जवाब सुनते हैं। ये अकीदा गलत है, ये इस्लामी अकीदा नहीं है। और हम जो हाजिर व नाजिर हुजूर को समझते हैं, उसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में तशरीफ़ फरमा, वहाँ आराम फरमा रहे हैं। जब चाहे किसी उम्मती की इमदाद के लिए, उनके उनके हिमायत के लिए जहाँ चाहे तशरीफ़ ले जा सकते हैं, इख्तियार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार है कि जहाँ चाहे तशरीफ़ ले जाए। इस लिहाज से और कायनात के हर जर्रा जर्रा को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में रहते हुए मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये अकीदा का नाम है हाजिर व नाजिर। और जो आप जो भेजे हैं उसमें मुराद ये है कि कोई ये समझे कि मैं जब भी दुरूद पढ़ूँ हुजूर हाजिर होना ज़रूरी है, लाजिम है। ये अकीदा गुस्ताखाना है कि हम दुरूद पढ़ेंगे और हुजूर को आना ज़रूरी हो जाएगा। नहीं, हुजूर चाहे तो तशरीफ़ ले जा सकते हैं जहाँ चाहे, ये हमारा अकीदा है। और हाजिर व नाजिर के ताल्लुक से आपकी किताब में अन-नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इसके तर्जुमा में खुद कासिम नानूतवी साहब लिखे हैं। किताब का नाम है तहज़ीरुन नास, पेज नंबर है 15, उसके पेज नंबर 16, उसमें लिखा है कि औला बमाना अकरब, सबसे ज़्यादा करीब, मोमिन से सबसे ज़्यादा करीब, हर मोमिन से करीब। तो इस लिहाज से भी हाजिर व नाजिर साबित होता है आपकी किताब से। और हाजिर व नाजिर का ये अकीदा जो मैं अभी बयान किया, ऐसा अकीदा जो ना रखे वो गुमराह है। और आला हजरत इसके बारे में नहीं बताया, बल्कि जो दुरूद शरीफ पढ़ता है और कहता है कि हुजूर को आना लाजिम है, तो वो गैर इस्लामी अकीदा है। अभी आप रखिए अपनी बात। हाँ जी, आपने जो ये हवाला जो मैंने पेश किया था, इस हवाला में साफ ये बात मौजूद है कि मगर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानना अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है और सही नहीं है। यहाँ साफ ये लिख दिया है कि जो हुजूर को हाजिर जाने, यहाँ मुतलक लिखा है, ये नहीं लिखा है कि एक जगह बैठ कर ही वहाँ से देखे या ना देखे, ये नहीं लिखा है। बिल्कुल साफ लिखा है कि जो हुजूर को हाजिर जानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर जानना अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। लिहाजा ये आप जो बयान किए हैं, ये आपका बयान करना इस फतवे की तौहीन है और आप मौलाना अहमद रज़ा खान की तौहीन कर रहे हैं। इसलिए आपकी तौहीन करने की वजह से भी आप उसके खिलाफ किए। दूसरी बात, इस फतवा के रूह से, आपके फतवा के रूह से आपके अहमद रज़ा खान जो है वो गुमराह साबित हुए। दूसरी बात ये, आपने कहा कि एक जगह बैठ कर वहीं से हर जगह का ये हर जगह हाजिर होते हैं। ये अकीदा आप जो है, ये अकीदा आप जो है क्या नाम है, इमाम वनीफा रहमतुल्लाह अलैह से आप दिखला दें, और ये दिखलाएं आप पहले ये हवाला पेश करें। और अभी आपका इस पे बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपके मौलाना साफ लिखा है कि हाजिर जानना यह अकीदा अहले सुन्नत जमात के खिलाफ है। तो लिहाजा आप अपने फतवा से आप अपने पीर और मुर्शिद को गुमराह साबित कर दिए हैं। और इसके अलावा आपकी कई किताबें हैं जिसमें ये बात मौजूद है कि जिसमें अतहर के साथ हाजिर होते हैं। और आपके मिलाद में आपको उलमा लोग भी खुद कहते हैं कि हुजूर आएंगे, हुजूर की महफिल है, हुजूर आएंगे। तो इसलिए जो है ये आपका ये कहना कि एक ही जगह से ये आप उस सरासर झूठ इल्जाम कह रहे हैं, और आप अपने मौलाना अहमद रज़ा खान को इस फतवा से, अपने फतवा से निकाल सके। इसलिए आप पहले इसको वाज़ेह करें। इसमें साफ लिखा हुआ है, मुतलक लिखा हुआ है कि हाजिर मानना अकीदा अहले सुन्नत जमात के खिलाफ है। जी बोलें। अच्छा, ये देखिए आप जो भेजे हैं उसको आप देखते रहिए, मैं पढ़ता हूँ। आप जो कह रहे हैं
وہ ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں جو کہا وہی ثابت ہوتا ہے، پوری عبارت۔ آپ صرف بیچ میں ایک لائن پڑھے ہیں، اوپر کی 2 لائن اور نیچے 3-4 لائن پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ یا رسول اللہ کہنا بے ادبی کی جگہوں کے سوا ہر وقت جائز ہے۔ جہاں بے ادبی کی جگہ ہے وہاں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں، جیسے کہ بیت الخلاء ہو یا پھر ایسی کوئی جگہ ہو جہاں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ باقی ہر وقت یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اور مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے اور صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جگہ بات مکمل اتنی تک نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد آگے کی بات ہے۔ درود شریف یا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خود مدینہ منورہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود شریف یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود پڑھتے ہی حضور آئیں گے اور حضور آ کر ہمارے درود خود سنیں گے، اور حضور کے سامنے ہم درود شریف پیش کر رہے ہیں، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ ہے، جو کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، بعض فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتے درود شریف مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی خدمت ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے درود شریف پڑھنے کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ آپ حاضر و ناظر جان کر یہ سمجھ کر کے درود شریف پڑھیں گے فوراً حضور تشریف لائیں گے، اور لانا لازم ہے، یہ لازم کا انکار کیا گیا ہے۔ اور حاضر و ناظر آپ کے علماء خود کتاب میں لکھے ہیں، اگر ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے تو قاسم نانوتوی نے عقیدہ کیوں بنایا؟ اولا بمعنی اقرب، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ کر اس کا بھی جواب دیں، آپ کے قاسم نانوتوی صاحب کا بھی جواب دیجیے، میں بھیج رہا ہوں، اس کو بھی پڑھیے۔ میں بھیج رہا ہوں قاسم نانوتوی صاحب کی جو عبارت ہے اس کو بھی آپ پڑھ کر برائے مہربانی آپ جواب عنایت فرمائیں۔ میں بھیج رہا ہوں، ابھی بھیج رہا ہوں، رکیے۔ جی بولیے۔ ہاں بولتے رہیے آپ۔ جی تو آپ نے کیا سمجھا اس سے؟ آپ عبارت پڑھیے جیسا میں پڑھا، وہ عبارت پورا پڑھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، اس میں صرف درود پڑھنے کے لحاظ سے بتایا گیا ہے۔ اس میں تو صاف یہ لکھا ہوا ہے، بالکل یہ لکھ دیا ہے، کیا نام ہے، مطلب کہ حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ آپ نے لکھ دیا، یہاں پر قید کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہاں صاف لکھا ہوا ہے۔ ہاں اس نے آگے جو لکھا ہے، آگے یہ لکھا ہے کہ نصر شریف کے اندر واحد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو تو پہنچتا ہے، فرشتے بھیج لے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، بات بالکل صاف ہے، لیکن آپ کو مولانا صاف لکھ دیا، پھر بھی آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ درود کے لحاظ سے ہے، درود کے لحاظ سے۔ ابھی آپ میں نے عبارت بھیجا اس کو ایک بار پڑھ کے دجل اور فریب سے یہاں تو عبارت آپ پڑھیے نا، آپ بھی عبارت اس کے نیچے کا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پڑھ لیا۔ ہاں تو ابھی آپ کو میں نے اور ایک عبارت بھیجا ہوں، قاسم نانوتوی کی عبارت اکبر میں تصریح فرمائی ہے، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام غیب اشیاء، وہاں سے پھر غیب کی باتیں شروع ہو گئے ہیں، پھر آگے بھی لکھے حنفیہ نے اس کی تکفیر کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غیب ہے، تو وہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کا مسئلہ جو ہے یہیں تک آیا، درود پاک تک، اس میں صاف لکھ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاضر جانتا ہے اس کا عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ بلکہ بات وہاں مکمل ہوئی کہ بلکہ درود شریف بات ہو رہی درود شریف کے تعلق سے، میں عبارت پورا صرف عبارت پڑھتا ہوں، دیکھیے چلیے ایک کتاب اور ہے آپ کی، یہ کتاب ہے، سنیے، یہ کتاب ہے، یہ کیا نام ہے، وہاں سے کانپور سے چھپا ہے، انجمن اشاعت دین مصطفیٰ، دادا میاں چوراہا بیگم گنج چوک کانپور سے، تعلیمات اعلیٰ حضرت کے نام سے انہوں نے یہ سوال قائم کیا ہے، ایک منٹ میں بتاتا ہوں کہ سوال قائم کرتا ہے کہ آپ کو حاضر و ناظر جاننا اور عالم غیب ماننا کیسا ہے؟ ایسی بات کرتے ہیں کہ حضور کو حاضر جاننا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، فتویٰ رضویہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، پھر بھی آپ جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بتائیے کیا آپ کی یہ کتاب غلط ہے، فتویٰ رضویہ غلط ہے، یا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، یا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ بتائیے۔ ہاں تو
तो देवबंदी लोग समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त। अल्लाह का शुक्र है कि देवबंद वाले आप खामोश रहे, आपकी बारी हो गई, आपकी बारी मुकम्मल हो गई, वक्त मुझे दे, नहीं है आप मुझे दे, इसमें साफ मुतलक लिखा हुआ है, मुझे दे। आप वक्त बिला वजह मेरा वक्त ले रहे हैं। आपने बात कर लिया, मुझे बोलने इजाजत दिया, आप जो है बोलने इजाजत दिया, फिर आप भी बोल रहे हैं। ध्यान दें, और यहाँ साफ लिखा हुआ जो हुजूर को हाजिर मानेगा वह अकीदा अहले सुन्नत जमात के खिलाफ है। तो आपकी बात हो गई, बार बार दोहरा रहे हैं वही, और मुझे बोलने नहीं दे रहे। एक बार बोलना काफी है। क्या नाम है, इसको छोड़कर भाग रहे हैं इधर से उधर। बात आपने जो सवाल किया उसका तो जवाब दो। आपको गुमराह साबित कर चुके हैं। बोल लिया आपने, मुझे बोलने नहीं देंगे आप। नहीं बोले बोल रहा हूँ कि आपके जो लोग समझते हैं उनके अकीदे का रद्द किया है। जो आपकी दूसरी किताब जो कानपुर से शायद उसके बारे में बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो बदअकीदा वहाबी लोग समझते हैं कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त हर जगह जिस्म अतहर के साथ बनफ्स नफीस, हर वक्त हर जगह जिसमें अतहर के साथ बनफ्स नफीस मौजूद समझते हैं, इसको हम हाजिर व नाजिर समझते हैं। तो ऐसा अकीदा अहले सुन्नत का खिलाफ है, अहले सुन्नत के खिलाफ है। यह अकीदा हमारा नहीं है। हमारा अकीदा जो मैंने बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ से पूरी दुनिया के हर उम्मती को हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमा रहे हैं, और जहाँ चाहे जिसमें अतहर के साथ तशरीफ ले जा सकते हैं। ये हमारा अकीदा है। ये अकीदा के खिलाफ हम नहीं है। ये अकीदा को हम हाजिर व नाजिर का अकीदा कहते हैं, और ये अकीदा आप लोगों का भी है। कासिम नानूतवी जो लिखा है, मैं आपको भेजा हूँ, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यहाँ पर तर्जुमा करते हुए लिखा है औला बमाना अक़रब हुआ, उम्मती के जान से ज्यादा नबी करीब है। आपको इबारत भेजा हूँ, आप खुद पढ़िए। कासिम नानूतवी का भी यही अकीदा है। तो आपके नज़र में अगर ये अकीदा अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसलक के खिलाफ है, तो आपके कासिम नानूतवी खिलाफ है। बल्कि आप जो बोले हैं कोई बात बोलने नहीं देते, देवबंदी की यही कमी है, कोई बात बोलने नहीं देते। और जहाँ तुमने आला हजरत की बात नकल किया है, आला हजरत की बात जहाँ तुमने बताया है, वहाँ पर आला हजरत ने दुरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक से लिखा है कि दुरूद शरीफ इस लिहाज से नहीं पढ़े कि हुजूर हमारी दुरूद खुद सुनने आएंगे, हुजूर हमारे मोहताज है, ऐसा नहीं है। बल्कि फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुरूद पहुंचाते हैं। ये अकीदा नहीं है कि दुरूद पढ़ते ही हुजूर आ जाएंगे। ये गुस्ताखी है और अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ है। ये अकीदा हमारा नहीं है। ये आला हजरत ने साफ साफ बता दिया। आगे के पीछे के इबारत पढ़कर आप बताएं। आप फिर बीच में एक लाइन पढ़कर नहीं है, क्योंकि आजान हो रहा है, आजान हो रहा है, खामोश हो, मैं खामोश हो जाइए। फिर से बोलो अपनी बात, 2 मिनट बोलो, फिर से बोलो। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि आजान हो रही है, आपने आजान का भी लिहाज नहीं किया। बार बार बोलो, आप इतना बेहोश हो जाते हो। इतना बेहोश क्यों हो जाते हो? जरा मेरी बात होने दो, कोई किसी की बात लफ्ज मुकम्मल होने दो। मैं बोल रहा हूँ कि जब आजान हो रही थी तब आपको मैंने, मेरी बात मुकम्मल होने के बाद आजान शुरू हुई, आपको मैंने बोला खामोश रहो, आप खामोश रहे, बोलते रहे, उधर आजान हो रहा है, मैं आपकी बात सुना नहीं, आपकी बात सुना नहीं। आप फिर से बोलो, जो आप तफसीर रहमी पर बोल रहे हैं, फिर से 2 मिनट बोलो। अब मैं 2 मिनट बोल के बात मुकम्मल करूंगा। हाँ तो बोले ना, तो आप हुजूर से भाग रहे थे ना। आपने कहा कि मेरा अकीदा वो नहीं है, और आप कह रहे हैं कि दरूद शरीफ के बारे में, दरूद शरीफ के बारे में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, तो आपको मौलाना साफ कह दिया है कि क्या नाम है, आजान हो रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप बेहोश हो जाते हो, बोलते बोलते ना इतना बेहोश हो जाते हो, सामने वाले क्या बोल रहे हैं सुन नहीं रहे हो, और कुछ भी आप लिहाज नहीं रखते हो। इत्मीनान से बात करना, इत्मीनान से बात करना है। आप अपनी बात रखो, 2 मिनट बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो तफसीर नईमी के अंदर भी साफ वाज़ेह लिख दिया है कि जिस तरीका से अल्लाह को हाजिर जानते हैं उसी तरीका से महबूब को हाजिर माने। यानी अल्लाह के बराबर आपका तसव्वुर है, आपका यहाँ अकीदा है। जिस तरह अल्लाह हाजिर है हर जगह, उसी तरीका से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर जगह हाजिर है। हालांकि अल्लाह के हाजिर के बारे में भी आपका अकीदा कुछ और है, कुछ और है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन मैं बतला रहा हूँ यहाँ पास कि जो तफसीर नईमी में लिखा है कि अल्लाह जिस तरह हाजिर है उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाजिर हैं। लेकिन आप जो है फतवा रिज़विया से राय फिरार इख्तियार करें और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बार बार उसको इनकार ना करें। आपकी बात हो गई? बार आप उससे भाग रहे हैं। आप जो हमारा, मैंने आपको
तफसीर नईमी का हवाला दे दिया कि आप अल्लाह की तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाजिर मानते। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप मेरी बात सुनो, 2 मिनट मुकम्मल हो गई आपकी बात? दीजिए, मैं तफसीर नईमी भेज दिया, मैंने हवाला दे दीजिए जी। भेज दिए हैं। अब मैं पहली बात बताता हूँ कि अल्लाह को हर जगह हाजिर और नाजिर कहना ये अल्लाह की शान के खिलाफ है। हर जगह हाजिर और नाजिर अल्लाह को हम नहीं कहते। हाँ, अल्लाह को हर जगह हाजिर और नाजिर हम नहीं कहते, बल्कि अल्लाह शाहिद व मौजूद है। हाँ, अब ये बहुत बड़ी नमाज का टाइम हो रहा है, मुकम्मल इबारत पढ़ना तो अभी टाइम नहीं है, समझे? अभी नमाज पढ़ाने के लिए जाना है मुझे, अजान हो गई है। अब इसको मैं पढ़कर इसका मैं जवाब दूंगा। हमारा अकीदा पहले बयान करता हूँ, और तफसीर नईमी हो चाहे कोई भी किताब हो, हमारे इसी अकीदे की तर्जुमानी करते हैं, जिस अकीदा यह है कि अल्लाह ताला शाहिद व मौजूद है। अल्लाह ताला हर जर्रे जर्रे को जानता है अल्लाह के इल्म के लिहाज से, लेकिन अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियत से, जगह जहत सिमत से अल्लाह पाक है। अल्लाह ताला शाहिद व मौजूद है। अल्लाह की सिफत अजली अबदी है, जब जगह नहीं थी तब भी अल्लाह था। तो अल्लाह को जगह हाजिर व नाजिर कहना ये अल्लाह के शान के खिलाफ है। और जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं, इस लिहाज से मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र शरीफ में आराम फरमा रहे हैं और जहाँ चाहे तशरीफ ले जा सकते हैं, और हर वक्त हर उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमा रहे हैं, देख रहे हैं। इस लिहाज से हाजिर व नाजिर है। और दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर कोई ये समझे कि दुरूद पढ़ूंगा तो भी हुजूर को आना ज़रूरी है, हुजूर हम सामने होंगे, तो ये अकीदा अहले सुन्नत के नहीं है, अहले सुन्नत के खिलाफ है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आला हजरत की किताब में भी वही लिखा हुआ है, और सारे हमारी किताबों में जाअल हक में आपको इबारत भेज दिया, उसमें भी वही लिखा हुआ है। और आपके कासिम नानूतवी भी यही लिखा है जो आपको भेजा हूँ, बिल्कुल साफ साफ, इसमें कोई भी खलत मलत नहीं है। आप बीच में एक लाइन पढ़कर एक लाइन में फैसला कर रहे हैं, उसमें आखिर में बल्कि लिखा है। बल्कि का मतलब क्या होता है? आगे की इबारत मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़ते फरिश्ते पहुंचाते हैं, दुरूद शरीफ के लिहाज से ही वहाँ कहा गया है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के वक्त यह अकीदा नहीं कि हुजूर को आना जिस्म के साथ आना लाजिम है, यह बिल्कुल नहीं है। बात मुकम्मल हुई। अब इंशाअल्लाह आगे की बात आपके अकीदे पर होगी, आपके जो कुफरी अकीदा है देवबंदियों के, कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के